सो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो भी दे दिए, ठीक है। ओके सर। Now let us begin. Whatever is the number, they will join. Our time is over or not? Time is already. Let me check. It's 3:33. 3 minutes are already extra. Let us begin. Let me share the screen so that we can discuss that. Present now. Chrome tab. Classes data. I have to share my screen. I have to use whiteboard. Create new. Okay. Is it visible to all of you? Sairam? Yes sir. If we are using text. Okay. So today I am going to discuss one more topic, that is the opening entries. है ना? ये opening entry, public entries. Here is the oblique. Here is the oblique. ANTRIAS. Oblique opening entry or entries. Okay. So what is the opening entry? Opening entries are passed to bring the balances of personal accounts. Opening entries are passed to bring the balances of personal accounts and real accounts from previous financial year to current financial year. Okay. Is it visible to all of you, Sairam? Yes, sir. So opening entries are passed to bring the balances of personal accounts and real accounts from previous financial year to current financial year. What is the meaning of this? Suppose financial year we can say counting year or financial year. Suppose 2019. What happens if firm follows the accounting year from 1st April to 31st March. Is it clear? Ram? Yes sir. So now this is a Z Garments. This is the firm, है ना? And Z Garments closed their books of accounts on 31st March 2020 for the accounting year, for the accounting year 2019-20. Are you understanding this? So what happens in case of this accounting year? What do we do?
if accounting year begins from 1st April, it will end on 31st March. ये होगा ना? So if this accounts books are closed on 31st March 2020, it means this is the year 1920. क्या बोलेंगे आप इसको 1920? What is the meaning of this 1920? Can any of you explain? When we write this 2019-20, what does it indicate? 1920 means सर 2019 का जो अकाउंटिंग बुक है वो वहाँ क्लोज होकर 20 की शुरू हो रही है, नहीं, मतलब 2019 क्लोजिंग ईयर है और 2020 ओपनिंग ईयर है। नहीं एक चीज देखो, इसका मतलब है कि दिस ईयर का उनका अकाउंटिंग ईयर started on 1st April 2019, है ना? मैं इस फर्म का जो अकाउंटिंग ईयर था ये वाला कब स्टार्ट हुआ था? 1st April 2019 and ended on 31st March 2020. Is it clear now? 1920, when we say, it means that this year was started on 1st April of this year and it ended on 31st March of this year. Is it clear? Sai Ram? Yes, sir. So 2019-20 means from 1st April 2019 to 31st March 2020. Now next year will be what? 2020-21. What is the meaning of this? Starting of The accounting year started on 2020 and ended on 2020 and ending on 31st March 2021. 31st March 21. 2021. Is it clear now? Okay, so this is the process. है ना? So normally firms can start their account, that we have already discussed in the accounting year concept. पढ़ा था ना हमने second chapter में. So accounting year refers to any period of 12 months after which a firm has to assess its performance, it has to prepare its financial statements. So firms can follow any period of 12 months as accounting year. Normally firms either start their accounting year on 1st January and their accounting year ends on 31st December. है ना? If it is started on 1st January, it ends on 31st December. है ना? And if it is started on 1st April, it will end on 31st March. In this case, 2 years are involved. 9 months of 1 year and 3 months of the next year. Again 9-3, that will continue. समझ में आ रहा है आपको ये? So when we write 2021, it means that April 20 to 31st March 21. है ना? So what will happen? What I said, this firm Jad Garments closed their books of accounts on 31st March 2020. कब close किया उन्होंने? It means that business is being shut or not. Business has been closed or not. Closing of accounting books means closing of business. There will be no business in future or not. Right now. Yes, sir. ये बिजनेस बंद हो गया क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद की तो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा फ्यूचर में? वो बिजनेस चलेगा. बिजनेस चलेगा. Which concept we have discussed about it? Which is the concept? Which concept says that business चलेगा, business will continue? किसी को याद है सेकंड चैप्टर? ओके, अदिति, साईराम, पूर्वी क्या हुआ? याद है क्या पूर्वी? Consistency concept. No, going concern concept. ना? What does it say? Going concern concept कहते हैं कि business will continue. So what we have to do? At the end of the year, we have to assess the performance. तो क्या करते हैं उसको? At the end of every year, whatever year you are following, if you are following April to March, then on 31st March. If you are following from
January to December, then on 31st December, we have to close the books of accounts. So we can prepare the financial statements and we can find out the profit or loss of the business and we can assess the financial position of the business. Is it clear? So that is the purpose. Okay. But business will continue, and what happens as business continues, so all accounts will also continue. So we have discussed three types of account. Which three types of account we have discussed? Personal accounts, real account and nominal account. Real account and real nominal. accounts, and nominal accounts. Okay. अब try to understand personal accounts, whatever personal accounts you have, what is the relationship of all personal accounts with business? क्या रिलेशनशिप होगा ऑल पर्सनल अकाउंट जितने भी पर्सनल अकाउंट होंगे बिजनेस के उनका क्या रिलेशन है बिजनेस के साथ में एनी टाइप ऑफ पर्सन नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन राम अच्छा कोई है कि नहीं वहां सारे लोग चले गए क्लास से ऑल ऑफ यू आर देयर और नॉट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दैट दिस इज द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान काम है कोई भी सिखा देगा कैसे भी कभी भी आप सीख लोगे दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टास्क समझ में आ रहा है क्या आपको सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कोर कांसेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज वेरी एसेंशियल अगर ये समझ में नहीं आया तो कितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो कोई फायदा नहीं है उससे वो कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना भूल जाओगे एंड वी not remember core concept and we will be always in trouble ठीक है so personal accounts means what who can define personal accounts It refers to a particular person. okay particular person let us take there are two persons Ramlal and Samlal है ना now see suppose this is the firm Jad Garments so what may be the possible relationship of this Ramlal and Samlal with this Jad Garments इसका क्या रिलेशन हो सकता है फर्म के साथ में पार्टनर्स हो सकते हैं Partnership. जब पार्टनरशिप हो सकती है ठीक है और कोई रिलेशन पार्टनरशिप के अलावा एनी अदर रिलेशनशिप सर वो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो बिजनेसमैन हो गया और कोई रिलेशनशिप इसके ओनर के अलावा पार्टनर है तो ओनर हो गया उसके अलावा और क्या रिलेशन हो सकता है Can they not be the customer of the business or supplier of the business? Yes, sir. वो रामलाल श्यामलाल मोहनलाल जो भी है they can be the customer or supplier of the business or not? Yes, sir. अगर सप्लायर होंगे तो क्या क्या रिलेशन होगा उनका बिजनेस के साथ में सप्लायर है तो हमने क्या किया उनसे व्हाट बिजनेस हैव डन बिजनेस हैव डन सर गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट लिया Purchase किया होगा. हाँ परचेज किया होगा कौन सा परचेज तब उनका नाम आएगा अकाउंट में कैश परचेज की क्रेडिट परचेज Cash purchase. कैश परचेज की एंट्री बताओ एंट्री क्या होती है anyone can tell कैश परचेज की एंट्री बताओ एंट्री ऑफ कैश परचेज Purchase. परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट है कैश अकाउंट है ना कैश तो इसमें रामलाल श्यामलाल किसी का नाम आया क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में किसी का नाम आया क्या Sir. अब क्रेडिट परचेज होगा गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल तो क्या एंट्री करोगे राम
Transaction is goods purchased from Ramlal. Then what entry will you pass? Purchase account debit to Ramlal. Very good. तो रामलाल, ठीक है, रामलाल आ गया अब. Now see what is, who is the Ramlal here? What is the relation of Ramlal with Venus? Supplier. the supplier. Supplier means क्या करना है उसको? जब हमने सामान खरीदा तो पैसा देना है उसको, समझ में आ रहा है क्या? ठीक हुआ ना, क्रेडिट परचेज किया तो पेमेंट करना है, Creditor. तो क्या होगा? क्रेडिटर. हाँ भाई ना, उस वर्ड पे आप लोग इतने टाइम के बाद में, तो ही विल बी क्रेडिटर. और अगर किसी को सेल किया क्रेडिट में तो क्या होगा? वो Debtor. डेब्टर. दैट्स ऑल. बस वो सब कुछ जितने भी आपने 50, 100, 200 जितने नाम लिखे होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे आपकी बुक में, हो सकता है 1 लाख पर्सनल अकाउंट खोले आपने, वो सबका ग्रुपिंग होगा, तो अल्टीमेटली क्या रहेंगे वो? उनका रिलेशन क्या है बिजनेस के साथ में? या तो उनको पैसा देना है या उनसे पैसा लेना है, ये तो बोलते हैं, ये होगा ना? सही राम? Yes, sir. Yes, sir. अगर वो मान लो ओनर भी है, पार्टनर भी है, तो बिजनेस को क्या करना है? पैसा देना है वापस, उसका जो कैपिटल लगाया उसने, तो क्रेडिटर है वो. So all personal accounts will be grouped under these two headings. Either they will be the creditors or they will be the debtors. ठीक है सही राम? अब आप इमेजिन करो, ईयर एंड हो गया, तो रामलाल से जो परचेज किया आपने गुड्स क्रेडिट पे और पेमेंट नहीं किया ईयर एंड तक, तो क्या उसका क्लेम खत्म हो जाएगा? अगले साल रामलाल पैसा नहीं मांगेगा आपसे? ये अब तो साल खत्म हो गया, पैसा नहीं मांग सकता. Is it so? सर तो मांगेगा ही अपना. नो सर. मांगेगा ना डेफिनेटली उसका. और हमको किसी से लेना और ईयर एंड हो गया तो हम पैसा नहीं मांगेंगे अगले साल की? अब तो ईयर एंड हो गया, पैसा नहीं मांगना है. नहीं कर सकते ना. तो दीज अकाउंट्स आर कंटिन्यूड फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर. अगर ये अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया तो भी ये अकाउंट अगले साल में जाके दोबारा चले जाएंगे, और वो स्टेटस वैसे ही रहेगा. यानी किसी से पैसा लेना हो तो अब भी लेना है, और किसी को देना है तो उसको अभी भी देना है. समझ में आया आपको? तो दिस पर्सनल अकाउंट्स. और दूसरा होता है इसका, अगर आप ग्रुपिंग कर दोगे तो ये किस कैटेगरी में चले गए? अच्छा इसका देख लो पहले. रियल अकाउंट में क्या आता है आपके पास? रियल अकाउंट बिलोंग टू व्हाट? Sir, assets. ओनली असेट्स. ठीक Assets है, and expenses. असेट्स ओनली, नॉट एक्सपेंसेस. असेट्स में लिखा है आपने एक्सेप्ट डेब्टर्स, ये था ना? Yes, sir. ये लिखा था रियल अकाउंट में डेफिनेशन में, ऑल असेट्स एक्सेप्ट डेब्टर्स. तो मैंने यहाँ कर दिया असेट्स प्लस डेब्टर्स, तो ये रियल अकाउंट में आ गए असेट्स एंड डेब्टर्स. यानी असेट्स हो गए, डेब्टर्स ऑल्सो क्या हो गए? डेब्टर्स आर ऑल्सो असेट्स ना. अब क्रेडिटर्स हैं जो, वो क्या है? क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए? क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटीज होती हैं. क्या डेफिनेशन लायबिलिटी की? अमाउंट पेबल इन फ्यूचर, है ना? यही है ना, जिसका पेमेंट फ्यूचर में करना है वो लायबिलिटी है. तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे आपके? Right. और डेब्टर से पैसा मिलना है तो डेब्टर्स क्या हो गए हमारे लिए? असेट्स. Okay. ठीक है. ये अकाउंट ऑफ इफ यू हैव फर्नीचर, इफ यू हैव बिल्डिंग, दैट बिल्डिंग विल कंटिन्यू फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर. ठीक है. तो ये अकाउंट हमारे इन दो आते हैं, हमारे परमानेंट अकाउंट होते हैं. दीज अकाउंट्स विल कंटिन्यू फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर. कौन सा? पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट. इन अकाउंट्स को हम कंटिन्यू करते हैं. और जो तीसरी कैटेगरी अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट्स की, दे आर क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर ना, वो बंद हो जाते हैं. एंड देयर बैलेंसेस आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू नेक्स्ट ईयर. दे आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दे आर क्लोज्ड, है ना. तो नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, दे बिलोंग टू ओनली वन स्पेसिफिक ईयर एंड दे आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर. समझ में आया आपको? So out of 3 types of accounts, personal, real and nominal, the nominal accounts are closed. अब वो सैलरी अकाउंट है तो इस साल का सैलरी अकाउंट खत्म हो गया, अगले साल एक नया सैलरी अकाउंट बनाएंगे और फिर वो उसमें नेक्स्ट ईयर की सैलरी आएगी. समझ में आया? Rent account is for 1 year. It is closed after end of the year. Next year we will start. So the balance of these accounts, nominal accounts, is not carried forward.
दैट इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए हम करते हैं वो होते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। उसके लिए कौन सी एंट्री करते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज होते हैं, उनको तो क्लोज करते हैं। कौन सी एंट्री करते हैं? क्लोजिंग एंट्री। और इनमें क्या होता है? बैलेंसिंग होती है, BALANCING। किस किस में होती है बैलेंसिंग? पर्सनल अकाउंट में और रियल अकाउंट में, इनको हम बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, इनको तो क्लोज कर देते हैं नॉमिनल अकाउंट्स को, इनको किया आपने बैलेंसिंग। तो जिन जिन अकाउंट में बैलेंसिंग किया मतलब उनका बैलेंस निकाला, तो अकाउंट में कौन सा बैलेंस हो सकता है? विच बैलेंस इज पॉसिबल इन अकाउंट? एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट में कौन सा बैलेंस पॉसिबल है? अकाउंट में कितनी साइड होती हैं? Sairam, how many sides are there in an account? Sairam, 2. two. कौन से two? Debit and credit. Very good, very good. So accounts may have either debit balance or credit balance, but दो ही possibility है. So maximum possibilities are three. Some account or accounts may have debit balance, some accounts may have credit balance, and some accounts may have no balance. Means the debit and credits are equal, so there is no difference, so there is no balance. Is it clear? So अब इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, इसके लिए ओपनिंग एंट्री नहीं होती। किसके लिए? नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट the subject of the opening entries because their balances are not brought from previous year to। आपको डेफिनेशन देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने? bring the balances of personal account and real accounts from previous year to current year, है ना? but the balances of nominal accounts are not transferred from current year or previous year to current year, so we don't pass opening entry for nominal account, rather they are closed by passing a closing entry that we will discuss later। closing entries क्या होते हैं, ठीक है? अब बच गए हमारे पास कौन से अकाउंट? पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट। तो इनका ओवरऑल स्टेटस क्या है? देखो, दैट इज टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या समझाया आपको यहाँ पर? द ओवरऑल स्टेटस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट विल बी टू। क्या टू होगा? या तो वो असेट्स होंगे या फिर लाइबिलिटीज होंगे। समझ में आपको? Whatever balances are there in the personal account or real account, they will be either assets or liabilities। सही राम, अब ये समझ में आया क्या आपको इतना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है वो समझो। डेफिनेशन तो लिख दिया आपने, अब कुछ कुछ फीचर्स है इसके, वो क्या है? ओपनिंग एंट्री are always passed in the beginning of accounting year। साल के बीच में ओपनिंग एंट्री नहीं होती है, एंड में नहीं होती। कब होती है? वो फर्स्ट डे, जिस दिन आपका ईयर स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ईयर, तो फर्स्ट डे की पहली एंट्री ओपनिंग एंट्री होती है हमारी। ठीक है, किस बात के लिए करते हैं? पर्पज क्या है? टू ब्रिंग द बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स from previous year to current year। ठीक है, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, what this be pass the accounting entry। and number 3, opening entries are always passed in general। ठीक है, ओपनिंग एंट्रीज आर ऑलवेज पास्ड इन जनरल। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ओपनिंग एंट्री क्या है? ओपनिंग एंट्री
sundry assets account debit to sundry liabilities account to capital account. ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी ओपनिंग एंट्री। इसको लिख दिए इंडिविजुअली, सारी असेट्स के नाम लिखना, जो जो असेट्स हैं वो सब डेबिट होंगे। All assets will be debited individually and all liabilities will also be credited individually. हाँ। भाई बंद हो जाए, चल ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ऐसा, दिस इज बेस्ड ऑन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारी है वो क्या है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और डुअल एस्पेक्ट इक्वेशन, है ना, इज इक्वल टू assets is equal to liabilities plus capital. This is the basic concept. Assets is equal to liabilities plus capital. अब now you can understand, if you understand, then capital is also liability. What you can say, totally what should happen according to double entry system or dual aspect concept, in every business there must be equality of assets and liabilities. Okay, assets and liabilities are equal. So these two are liabilities, can be grouped in the same, they can be grouped in the same category, both are liabilities. Assets, liabilities are liabilities and capital is also liability. What are the liabilities? These are external. When we call liability, these means external, means they are to be paid to outsiders, na? And liabilities plus capital यहाँ पर plus capital means capital is a internal liability. ओनर्स इक्विटी पेबल टू द ओनर्स, बट बोथ आर लाइबिलिटीज। समझ में आपको बेसिक इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, assets is equal to liabilities plus capital. This is accounting equation. That's why this entry is pass sundry assets account debit to sundry liabilities account to capital account. Is it clear? हाँ ये बोलो, समझ में आया क्या आपको नहीं आया? Yes, sir. हाँ जी, assets। अब आपने जो बोलना वो क्या नाम है आपका, शिवम, क्या क्वेश्चन था उसमें, क्या था, डेट बोलो, डेट क्या उसका? हाँ हाँ sir. बोलो, क्वेश्चन क्या था? Generalize the following transaction in the books of Sanjana and post them into the ledger. डेट क्या है उसका? So 1st January 2015. 2015 January 1st. As I said, this is the first date, है ना? It means that their accounting year is starting on January. तो इनका accounting year होगा January to December. So January 1st they are starting then, है ना? तो opening day January 1st। हाँ बोलो, आप आपको बैलेंस भी होंगे assets और हाँ बोलते चलो, आप तो क्या कहते हो बोलो। Cash in hand. कैश asset होती है कि liability होती है बोलो? asset, कैश का asset है तो कैश अकाउंट डेबिट, ऊपर क्या लिखा देखो, एंट्री assets डेबिट होती है ना, कितना अमाउंट है बोलो, अमाउंट बोलो। 6,000. हाँ 6,000. ओके, अगला बोलो। Cash at bank. बैंक अकाउंट डेबिट 55,000.
55,000. Stock of goods. Goods और stock account debit. 40,000. 40,000. Okay. Due to Rohan. ड्यू का मतलब देना होता है कि लेना, उससे देना है कि लेना उससे, उसको पेमेंट करना है कि लेना. ड्यू टू मीन्स व्हाट? बोलो. ड्यू का मतलब क्या समझ में आ रहा है? उससे पेमेंट पैसा करना है. सर देना है पैसा. देना है तो क्या होगा? वो क्रेडिटर होगा, है ना. हाँ सर. क्रेडिटर होगा तो क्या होगा? लायबिलिटी हो गई, ये होगा ना. तो टू नंबर 1 यस सर. अमाउंट बोलो. 6,000. 6,000. ठीक है, आगे बोलो. Due from Tarun. ड्यू फ्रॉम तरुण. फ्रॉम तरुण तो मतलब लेना है कि देना उससे? सर लेना है. लेना है तो क्या हो गया? बताया था अभी आपको, डेप्टर. हाँ. डेप्टर होता तो असेट होती है ना. क्लियर है ना आपको अभी? हाँ सर. लेना है तो डेप्टर है, डेप्टर सारा असेट, तो डेबिट होगा. कितना अमाउंट है तरुण का? 10,000. 10,000 है. बोलो आगे. सर बस इतना ही. अब देखो इसमें ये इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको? बेसिक इक्वेशन क्या है? असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अगर आपको कैपिटल नहीं दिया तो कैसे निकाल सकते हो आप? यहाँ देखो इसको, इसलिए मैंने सब कुछ लिखा है पूरा बैकग्राउंड आपका. कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज. समझ आ गया आपको? अगर आपको कैपिटल नहीं दिए तो हम कैपिटल निकाल लेंगे. फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज. समझ में आया? यस सर. अब दूसरी इक्वेशन हो सकती है, ये पहली कंडीशन है आपकी, इफ कैपिटल इज नॉट गिवन. अगर कैपिटल नहीं दिए है तो हम इसको निकाल लेंगे, असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके कैपिटल आ जाएगी हमारी. दूसरा हो सकता है सेकंड इक्वेशन, इसको नंबर 1 डालता हूं मैं ना. ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. तो दूसरी हो सकती है, सेकंड इक्वेशन हो सकती है, क्या हो सकती है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व. इट्स ऑल्सो लायबिलिटी. कैपिटल रिजर्व भी लायबिलिटी होता है. ये कब मानेंगे? इफ कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन. कैपिटल पहले से दे रखी है हमको क्वेश्चन में. कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन बट assets are more than liabilities. Assets are more than liabilities and capital. अभी asset की वैल्यू दोनों से ज्यादा है. इससे मैं आपको ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन. Assets are more than liabilities and capital. ठीक है. थर्ड इक्वेशन हो सकती है, इफ लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स. तो क्या होगा? In that condition फॉर्मूला होगा लायबिलिटीज माइनस असेट्स इज इक्वल टू गुडविल. तो जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल होगा, और गुडविल क्या होती है? गुडविल इज एन एसेट, है ना, इसलिए एसेट टाइप में आ जाएगी वो. ये सारी इक्वेशन है हमारे पास. ठीक है. ये इक्वेशन हो सकते हैं. पॉसिबिलिटीज 3 है ये आपकी. पहला है असेट ज्यादा है तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल.
इक्वल टू कैपिटल यहाँ पर है ना, इफ कैपिटल इज नॉट गिवन। दूसरा इक्वेशन हो सकता है हमारे पास असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व इफ कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन। और तीसरा इक्वेशन हो गया हमारा लायबिलिटीज माइनस लायबिलिटीज लायबिलिटीज माइनस असेट्स इक्वल टू गुडविल। अब आपने जो लिखा हुआ मेरे उसमें पता नहीं कहाँ चला गया, लिखता हूँ कुछ होगा तो नहीं हो रहा, लिखता हूँ इससे कुछ नहीं हो रहा, वो कहीं छुप गया, अभी लिखा था वो, ये आ गया। ठीक है, इसमें देखो अभी कितना हो रहा है, ऐड करो इन सबको। असेट्स का टोटल कितना हुआ 40 प्लस 10 50 है ना, 50 प्लस 55 1,05,000 1,11,000। तो असेट्स हो गई हमारे पास कितनी, क्या आप करोगे टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दी नहीं है, असेट्स की अमाउंट ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या हो गया टू कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर, कैपिटल कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो, इसको माइनस करो। सर 1,05,000। 1,05,000। ठीक है, तो 1,05,000 हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ओपनिंग एंट्री, बीइंग द अबव बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, है ना, कितना लिखेंगे, बीइंग द अबव बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो हम लेके आ गए, ये हमारी एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री। राम, ठीक है, इसकी और इक्वेशन करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना कर, ठीक है। आपको समझ में आ गया भाई शिवम? यस सर। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री है, असेट्स सारी डेबिट करिए, टू लायबिलिटीज, अगर कैपिटल नहीं दिया तो इनको ऐड करके माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और कैपिटल भी लिखिए तो वो भी लिख दीजिए, और फिर भी इसको ऐड करेंगे, ये ज्यादा है ये कम है तो वो डिफरेंस आएगा, वो होगा कैपिटल रिजर्व। अगर इनको ऐड करके ये ज्यादा और ये वाला अमाउंट कम है तो गुडविल होगा, तो गुडविल के अमाउंट यहाँ लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग एंड कमिंग बैक टू द मीट। सर इस वाले क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। सर इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल दिया था क्या? कैपिटल नहीं दिया ना इसने, हमने निकाला है कैपिटल, कैपिटल इज नॉट गिवन, तो कोई फॉर्मूला यूज कर लीजिए, असेट्स को ऐड किया हमने, ये 1,11,000 हुआ, लायबिलिटीज में एक ही है 6,000, तो 1,11,000 माइनस 6,000, तो डिफरेंस विल बी द कैपिटल। ठीक है, ओके, Sai Ram, now you can leave whatever problems you have, that we will discuss in the next class. So, to solve questions and find more difficulties, more problems, that we will continue to discuss. Okay, so now you can. Thank you, sir. Sai Ram. Sir, thank you, sir. सर हम सर Sai Ram, sir.